Let me check first. I can take risk regarding this video making. Okay. Hello guys, how are you? uh, I'm thinking of holding it only in my hand because I've seen my one of video in which I found that my voice was very crisp when I hold this near to my mouth rather than attaching it to my shirt. So today on 20th February I read this 14th chapter named as How to Make Good Habits Inevitable and Bad Habits Impossible. So in this chapter, at starting I was not expecting any special thing, but when I came to the second page of this chapter, I was surprised to read the description of Odysseus. Yes, James Clear has given one example of Odysseus in this book regarding to the rule, which I am going to explain you till the end. So let's start. I think I have read less as comparison to many days, because this chapter 14th I have divided into two parts. First is I'll cover the second one on next video, but for now I'm going to take the first part, which is only of 2 pages. I think it is just my resistance. At this time I'm feeling very sleepy and dizzy, but what to do? I have to complete my goal of giving this 1% better everyday video every day. I need to be consistent, so that's why I'm making this video. So let's start. In the summer of 1830, Victor Hugo was facing an impossible deadline. तो 1830 के समर में विक्टर ह्यूगो एक बहुत ही इम्पॉसिबल से डेडलाइन फेस कर रहा था. 12 months earlier, the French author had promised his publisher a new book. तो 12 महीने पहले ये जो विक्टर ह्यूगो है, ये एक फ्रेंच ऑथर है जिसने कि अपने पब्लिशर को एक नया बुक लिख के दूंगा ऐसा प्रॉमिस किया था. बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ही स्पेंड दैट ईयर परस्यूइंग अदर प्रोजेक्ट्स, एंटरटेनिंग गेस्ट एंड डिलेइंग हिज वर्क. लेकिन राइटिंग करने के बजाय उसने वो पूरा साल अपने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में या फिर कोई भी गेस्ट को एंटरटेन करने में और अपना काम डिले करने में ही बिता दिया. फ्रस्ट्रेटेड ह्यूगोज पब्लिशर रिस्पॉन्डेड बाय सेटिंग अ डेडलाइन लेस दैन 6 months अवे. तो जो ह्यूगो का पब्लिशर था तो वो फ्रस्ट्रेट होके ह्यूगो को 6 month की डेडलाइन, तो 6 month से भी कम टाइम की एक डेडलाइन दे दी. द बुक हैड टू बी फिनिश्ड बाय February 1831. तो ये विक्टर ह्यूगो की बुक February 1831 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए थी. ह्यूगो concocted a strange plan to beat his procrastination. तो उसने एक नया प्लान बनाया और उसने एक ऐसा नया और एक बहुत ही वियर्ड प्लान बनाया जिससे कि वो अपने प्रोक्रास्टिनेशन को एकदम भगा सकता है. He collected all of his clothes and asked an assistant to lock them away in a large chest. तो उसने अपने घर के सारे खुद के पहनने के कपड़े एक जगह जमा किए और अपने असिस्टेंट को कहा कि इसे किसी बड़े संदूक में लॉक कर दो. He was left with nothing to wear except a large shawl
तो उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक बड़ी शॉल के। Lacking any suitable clothing to go outdoor, he remained in his study and wrote furiously during the fall and winter of 1830. तो उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बाहर भी नहीं जा सका। तो उस टाइम को उसने अपनी स्टडीज़ में और लिखने में यूटिलाइज़ किया। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसने ऑटम का पूरा सीज़न और विंटर का पूरा सीज़न लिखने में, एकदम गुस्से से लिखने में बिता दिया 1830s का। तो आगे हमें बताया जाता है द हंचबैक ऑफ नॉटर डेम वॉज पब्लिश 2 weeks अर्ली ऑन जनवरी 14th 1831। तो ये शायद से एक बुक का नाम है जिसका नाम है द हंचबैक, जिसकी एक कुबड़ी पीठ वाला, कुबड़ा बोल सकता हूँ उसको। तो उसके राइटर हैं नॉटर डेम। तो उन्होंने विक्टर ह्यूगो की बुक पब्लिश होने से 2 वीक पहले जनवरी 14 और 1831 को अपनी बुक द हंचबैक पब्लिश की थी। यार क्या पागल है यार लोग। सेलिब्रेट करना है तो जियो से करो ना, ये पटाखे क्या जलाते हो आराम कर सोने के टाइम पे। Such a bloody nuisance. And I can tell you one thing, it's been 11 p.m. and it's time for sleeping. I think it may be very I think it may be very ugly or frustrating for my age of people, but try to think of those who are at their old stage, who are very experienced and trying and suffering with various problems regarding to health, and they are trying to sleep, and such bastards are making noise and disturbing their sleep. Such a creep they are. तो हंचबैक जो है, नोटर डेम ने अपने हंचबैक बुक विक्टर ह्यूगो की बुक पब्लिश होने से 2 वीक पहले ही पब्लिश कर दी, जनवरी 14 को। आगे पढ़ता हूँ। समटाइम्स सक्सेस इज़ लेस अबाउट मेकिंग गुड हैबिट्स ईजी एंड मोर अबाउट मेकिंग बैड हैबिट्स हार्ड। हमें यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी सक्सेस को पाते वक्त हमेशा आपकी गुड हैबिट्स ईजी होगी, और आपकी सक्सेस को पाते वक्त ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी गुड हैबिट्स हमेशा ही इजी होंगी और बैड हैबिट्स हमेशा ही हार्ड होंगी। वो कई बार ऐसा नहीं भी होता है। दिस इज़ एन इन्वर्जन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज मेक इट डिफ़िकल्ट। तो ये जो है इन्वर्जन है थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का, जो कि है मेक इट डिफ़िकल्ट, और हमारा थर्ड लॉ था मेक इट ईजी। तो वो जो लाइन थी मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ। वो लाइन थी कि हमेशा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सारी गुड हैबिट्स इजी हो सकती है और सारी बैड हैबिट्स हार्ड हो सकती है। If you find yourself continually struggling to follow through on your plans, then you can take up a page from Victor Hugo and make your bad habits more difficult by creating what psychologists call a commitment device. तो अगर आप अपने प्लान को फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो तब आपको एक विक्टर ह्यूगो का पेज लेना चाहिए। हाँ, तो आपको विक्टर ह्यूगो से एक सीख लेनी चाहिए और अपनी बैड हैबिट्स को और डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए बाय यूजिंग कमिटमेंट डिवाइस। अभी कमिटमेंट डिवाइस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ।
A commitment device is a choice you make in the present that controls your action in the future. तो एक कमिटमेंट डिवाइस एक आपकी चॉइस होती है जो कि प्रेजेंट में ली जाती है और वो आपके फ्यूचर गोल्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है. दैट कंट्रोल्स योर एक्शंस इन द फ्यूचर, जो कि आपके एक्शंस को आपके एक्शंस को फ्यूचर में कंट्रोल करती है. इट इज़ अ वे टू लॉक इन फ्यूचर बिहेवियर, बाइंड यू टू गुड हैबिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम बैड वंस. तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने फ्यूचर की आदत को लॉक कर सकते हो और अपनी अच्छी आदतों से एकदम स्टिक हो सकते हो और बुरी आदतों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. When Victor Hugo shut his clothes away, he could focus on writing. He was creating a commitment device. जब विक्टर ह्यूगो ने अपने घर के सारे कपड़े खुद से दूर कर लिए, तब उसने अपने राइटिंग पर फोकस कर लिया. तो उस टाइम पे वो अपना कमिटमेंट डिवाइस यूज़ कर रहा था. There are many ways to create a commitment device. कमिटमेंट डिवाइस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. You can reduce overeating by purchasing food in individual packages rather than in bulk size. तो आप अपनी ज़्यादा खाने की आदत कम कर सकते हो अपने खाने को इंडिविजुअल पैक्स में खरीद कर रैदर देन इन बल्क साइज़. तो आप अपनी ओवर ईटिंग के साइज़ को व्हाट एम आई स्पीकिंग तो आप अपनी ओवर ईटिंग के हैबिट को एकदम से कट कर सकते हो बाय परचेसिंग थिंग्स इन इंडिविजुअल फॉर्म रैदर देन इन बल्क साइज़. एक साथ ही ज़्यादा लेने के बजाय अलग अलग पैकेट्स में ले सकते हो, जैसे कि आप अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट को ओवरकम कर पाओ. यू कैन वॉलंटरली आस्क टू बी एडेड टू द बैंड लिस्ट एट casinos एंड ऑनलाइन पोकर साइट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर गैम्बलिंग स्प्रीज. तो आप अपने मन से ही खुद का नाम बैंड लिस्ट में ऐड करवा सकते हो कसिनो के या फिर कोई ऑनलाइन पोकर साइट्स के. तो फिर आप इजीली बताता हूँ, आप आप कॉन्शियसली ही अपना नाम कसिनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स के बैंड लिस्ट में दर्ज करवा सकते हो, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में होने वाले गैम्बलिंग चांसेस को रोक सको. I have even heard of athletes who have to make weight for a competition during. I have even heard of athletes who have to make weight for a competition, choosing to leave their wallets at home during the week before weigh-in so that they won't be tempted to buy fast food. तो यहाँ हमें बताया गया है कि राइटर ने कुछ ऐसे भी एथलीट्स को देखा है जो कि जिनको वेइंग के टाइम पे वज़न बढ़ाना पड़ता है. क्योंकि उनका वज़न बहुत कम हो चुका है. किस वजह से तो उन्होंने अपना वॉलेट जो है वो घर पे ही रखा है वज़न चेक करने के कुछ हफ्तों पहले ही, ताकि उनको फास्ट फूड ख़रीदने की इच्छा ना हो और लालच ना आए, ताकि राइटर ने कुछ ऐसे भी एथलीट्स को देखा है जो कि वेइंग के टाइम पे बहुत ही अंडरवेट थे और उनको वज़न बढ़ाने का सजेशन दिया गया था, क्योंकि उनका वज़न बहुत कम हो चुका था, इसलिए कि
वो अपना वॉलेट घर पे रखते थे जिससे कि उनको फास्ट फूड खरीदने की टेम्पटेशन ना आए। अनदर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड फेलो हैबिट एक्सपर्ट Need I purchased an outlet timer, which is an adapter that he plugged in between his internet router and the power outlet. तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड और एक हैबिट एक्सपर्ट नीड इयाल ने एक आउटलेट टाइमर परचेस किया था, जो कि एक अडेप्टर है और उसने जब वो अडेप्टर प्लग किया अपने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में, तो उसने वो आउटलेट टाइमर लाया जो कि एक अडेप्टर है और उसे अपने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में प्लग कर दिया। एट 10 PM each night, the outlet timer cuts off the power to the router. When the internet goes off, everyone knows it is time to go to bed. तो रात के 10 बजे हर रात को 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर तक जाने वाली पावर को काट देता था, जिससे कि इंटरनेट जब जाता था तब सबको पता चल जाता था कि अब हमें सोना है। Commitment devices are useful because they enable you to take advantage of good intentions before you can fall victim to temptations. I'm feeling very tired. तो commitment devices एक टाइप से कमिटमेंट डिवाइसेस बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो आपको अपनी गुड इंटेंशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, रेदर दैन आप किसी टेम्पटेशन में फंस कर कोई बैड हैबिट्स अपना लो। Whenever I am looking to cut calories, for example, I will ask the waiter to split my meal and box half और eat to go before the meal is served. तो जब भी मुझे अपने डाइट से कैलोरीज कम करनी होती है या फिर अपना वज़न घटाना होता है, तो उस टाइम पे मैं ये चीज़ अपने आप पर फॉलो करता हूँ। उसका ही एग्जांपल दिया है राइटर ने यहाँ पे। आई विल आस्क, तो मैं अपने वेटर से पूछूंगा कि अब मेरी जो मील है उसको स्प्लिट कर दिया जाए, यानी कि बांट दिया जाए, और आधा जो हाफ जो पोर्शन है वो एक बॉक्स में मुझे एज अ पार्सल दिया जाए मेरी मील सर्व होने से पहले। इफ़ आई waited until the meal came out and told myself I'll just eat half, it would never work. तो अगर मैं अपनी मील आने से पहले खुद को समझा के रखूँ कि मुझको सिर्फ आधा ही खाना है, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता और मैं पूरा प्लेट सफ़ा चट कर जाता हूँ। और जो ओडिसियस का एग्जांपल है वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊँगा। The key is to change the task such that it requires more work to get out of the good habit than to get start on it. तो अपना अगर आपको टास्क चेंज करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, वो सीक्रेट ही यहाँ पे एक सीक्रेट है जिसमें कि आपको अपना जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर वो बैड हैबिट है तो उसमें आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जिससे कि आपकी गुड हैबिट ही आपको इजी लगने लग जाए। If you are feeling motivated to get in shape, schedule a
yoga session and pay ahead of time. तो अगर आपको अपने फिटनेस को लेकर मोटिवेशन फील हो रहा है तो प्लीज़ अपना एक योगा सेशन शेड्यूल कर लो और आपने जो टाइम सेट किया है उससे ज़्यादा योगा कर लो. If you are excited about the business you want to start, email an entrepreneur you respect and set up a consulting call. तो अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो तो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जिसे कि आप रिस्पेक्ट करते हो ईमेल करो और एक कंसल्टिंग कॉल करो. When the time comes to act, the only way to fail is to cancel the meeting, which require effort and may cost money. ताकि जब आपका एक्ट करने का टाइम आ जाए, जैसे कि मीटिंग में अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है और तब आपको आलस आ रहा है तो मतलब ताकि जब आपका एक्ट करने का टाइम आ जाए तो आपके पास मीटिंग कैंसिल करने के बजाय कोई भी रास्ता नहीं होगा जिससे कि जो कि बहुत एफर्ट भरा काम है और जिसमें कि आपका बहुत सारा मनी भी लग सकता है. Commitment devices increase the odds that you'll do the right thing in the future by making bad habits difficult in the present. तो कमिटमेंट डिवाइसेस जो है तो ये आपके फ्यूचर में एक करेक्ट कमिटमेंट ये जो कमिटमेंट डिवाइसेस है वो आपके फ्यूचर में अच्छे काम करने की चांसेस बहुत बढ़ा देते हैं rather than doing any bad habits in the present. However, we can do even better. तो हम इसे भी बेहतर कर सकते हैं. We can make good habits inevitable and bad habits impossible. तो हम अपनी गुड हैबिट्स को कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जिसे हम इग्नोर ना कर पाएँ और बैड हैबिट्स को एकदम ही इम्पॉसिबल बना दे. तो इस टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ ओडिसियस का, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इस पे अभी एक मूवी भी बनने जा रही है जो कि श्री क्रिस्टोफर नोलन जी बना रहे हैं. और मैंने सिंपली एक वीडियो देखा था जिसमें कि मुझे ओडिसियस की स्टोरी का पता चला था और बहुत ही क्रेजी स्टोरी है यार. हालांकि वो अपने माइथोलॉजी से नहीं है, ग्रीक माइथोलॉजी से है वो, लेकिन स्टोरी सुनने में क्या चाहते हैं और एक टाइप से वो गॉड लेवल क्या बोल सकते हो, एक टाइप से वो गॉड लेवल पर्सनालिटी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राटोस की तरह ही है ओडिसियस. तो यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे जो आपने कमिटमेंट डिवाइस की जो डेफिनेशन सुनी तो उसे उलिसेस पैक्ट या फिर उलिसेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि उलिसेस के नाम से रखा गया है द हीरो ऑफ द ओडिसी. द ओडिसी एक प्ले है शायद, तो उसमें का जो हीरो है उसका नाम है उलिसेस. तो उसके नाम पे कमिटमेंट डिवाइसेस को उलिसेस पैक्ट या फिर उलिसेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. तो इस द ओडिसी प्ले में हमारा जो हीरो है द उलिसेस, वो हालांकि मुझे जितना पता है उसका नाम ओडिसियस रहता है. यहाँ पे जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ. तो
हमारा जो हीरो है वो अपने सेलर्स को जब समुद्र से जा रहा होता है तो अपने जो सेलर्स है बाकी के तो उनको बोलता है कि मुझे इस शिप के मास्ट से बांध दो। मास्ट यानी कि एकदम एकदम क्या बोलते हैं टॉप मोस्ट एक जगह रहती है जो कि बेसिकली ऐसे लोग देखते हैं। एक शिप के टॉप मोस्ट को एक जगह होती है जहाँ पे एक स्पेशल बंदा खड़ा रहता है जो कि आगे से आने वाली दुश्मन सेना को देखता है। तो उसने अपने सेलर से बोला कि मुझे अपने शिप के मास्ट से बांध दो जिससे कि वो वहाँ सुनाई दे रहा मधुर संगीत सुन सके लेकिन अपनी जो शिप है उसको उस संगीत की तरफ ना मोड़ सके और पत्थर से ना टकरा सके। हालांकि मैं बताता हूँ वो जिस सफ़र पे निकला था वहाँ तक ना जा सके, इसलिए किसी गॉड ने तो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था जिसमें कि वो अपने शिप से सी से जा रहा होता है तो उसको और उसके सारे सेलर्स को एक इल्यूजन होने लगता है जिससे कि उन सबको एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। और वो जब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो उनको एक आइलैंड दिखता है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन वगैरह रहती है और वो एक टाइप से उनको अपनी तरफ बुला रही होती है और अट्रैक्ट कर रही होती है। तो उनसे बचने के लिए ओडिसियस अपना दिमाग लगाता है और सभी सेलर्स को बोलता है अपने कान बंद करो। और उसके बाद उसको थॉट आता है कि ये एक ऐसा टाइम है जो कि बाद में कभी नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सुन लेता हूँ लेकिन अपने सेलर्स को बोलता हूँ कि मुझे एक ऐसी जगह बांध के रखो जिससे कि अपने शिप के मास्ट पर बांध के रखो जैसे कि मैं वो सॉन्ग सुन पाऊँ लेकिन उस तरफ अट्रैक्ट होकर ना जा पाऊँ और अपनी बोट को भी वहाँ पे ना मोड़ूँ जिससे कि मुझे मेरी जान को खतरा होगा और मेरा गोल कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, तो ओडिसियस ने Odysseus realized the benefits of locking in your future actions while your mind is in the right place rather than waiting to see where your desire take you in the moment। तो यहाँ पे ओडिसियस को पहले से ही रियलाइज़ हो गया था कि अपने फ्यूचर एक्शंस को लॉक करके रखना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अपने फ्यूचर एक्शंस को लॉक करके रखना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बजाय इसके कि हमारा माइंड एक राइट प्लेस पे तो उनका कहने का मतलब है तो कि ओडिसियस को रियलाइज़ हो गया था कि अपने फ्यूचर एक्शंस को वो अगर लॉकअप कर लेगा तो वो अपने प्रेजेंट के जो थॉट्स है माइंड में चल रहे हैं उससे अपने गोल से नहीं भटक पाएगा। तो यही था, बस यहाँ तक ही पढ़ा था मैं। और आज थोड़ा ज़्यादा ही रेजिस्टेंस आ रहा है और आज तो मैंने पढ़ाई से भी थोड़ा ब्रेक ले लिया था। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता सिवाय संडे को भी मैं थोड़ा सा तो करता हूँ, लेकिन आज तो लाइब्रेरी को ही नहीं गया। बाकी होता है भाई, होता है, लेकिन गया कल तो जाऊँगा। तो बस हो गया कल। और tomorrow I am going to explain you how to automate a habit, never think about it again. How to automate a habit and never think about it again. I'm going to cover it in my next video of tomorrow. So if
really anyone is watching till now, so I want to thank him from my bottom of heart, because I'm making this video with lots of efforts. So please consider like and subscribing this channel. Now I'm going to sleep, and I'll meet you on the next video, on the next day of video. Till now, do 1% betterment every day. Thank you. Bye bye.